Hello guys, hope you all are good, enjoying a day. So today we are going to talk about the different topics like the grades of the pencil, use of pencil grades, and then the name of the pencils which we are going to use. Like there are different company which makes the art pencils and use of pencils, shading techniques, how to catch the drawing in a mind and break out the drawing. So these are some few topics which we are going to discuss today. So let's begin with our journey. So as I said, there are different grades of the pencils. So there is the brighter pencils grade and lighter pencil grades. So brighter pencil is like 2B, 3B, 4B, 6B, 8B, 10B and 12B. So these are the brighter grade pencils. Okay, brighter for the shading, for the dark line, for all those things we use this 2B pencil and 3B, 4B, 6B and 8. So these are shading pencils. And same way the lighter grades like HB, H, 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H and so on. So these grades of the pencils are used for lightweight line. So these pencils are used for light line weight. Like in the beginning, like while starting a drawing, we need to sketch out with the light line. We need to sketch out with the light line of our boundary. So we use the lighter grades of the pencil, lighter weight of the pencils. And once you are confirmed that the drawing is completed, you can use the brighter pencil to darken the lines, to darken a line, and for shading. So in shading also there are different techniques which I am going to discuss in the further classes. So you can see this, the difference. You can see the difference in these two pen grades. Like this I have used 4B pencil and this I have used HB. See the changes between the lines, between the thickness of the lines, the line weight and everything. So I'll suggest you for darkened portion and the shading, use the higher grades of the pencil like 4B, 6B, 8B, 10B and 12B. For the lighter line, use H, 1H, 2H and so on. So these are used for the lightweight and these are used for the bright line. Okay, so ये like आप लोग ब्राइट कलर के वेट के लिए आप 2B, 3B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B यूज़ कर सकते हैं. और लाइट वेट लाइन के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं H, 1H, 2H, 3H and 4H. Okay, so now let's talk about the uses of the pencils. So like I'll show you. So these are the different grades of the pencils which we are using. So I have 3 different company pencils which I am going to show you. So you can see here the different company name like Apsara, like you can see here Apsara,
that is 6B pencils, then art line, then art line pencil, then black matte pencil. Okay, so this is 8B. So these the pencils which I am showing, these are the like brighter pencils, bright weight line pencils. So you can use this for shading devices, to shade the drawing. आपको मैं यहाँ बताता हूँ. सो ये जितने भी ये ब्राइटर पेंसिल्स हैं, लाइक ब्राइट पेंसिल्स में भी क्या होता है, ड्राइंग में हम लोग क्या एक मतलब प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, लाइक ब्राइटर टू लाइटर, उसके बाद लाइटर टू ब्राइटर, लाइटर टू ब्राइटर. ठीक है, सेम वे हम लोग क्या करते हैं यूज़. आपको ये लाइट पेंसिल्स में, लाइट पेंसिल तो लाइट रहता ही है, पर उसमें भी हम लोग लाइक ब्राइटर टू लाइटर में जाते हैं, लाइटर टू ब्राइटर में आते हैं. ओके, सो ये कब काम लगता है, हम लोग को शेडिंग करने के समय, जब हम लोग कोई भी चीज़ को शेडिंग करते हैं. जब कोई भी हम लोग चीज़ को शेडिंग करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अपना लाइन वेट का जो प्रेशर रहता है हैंड का, वो एक होना चाहिए. सो ये क्या हुआ, ब्राइटर टू लाइटर में आया. उसके बाद फिर क्या होगा, ये लाइटर टू ब्राइटर में जाएगा. ठीक है, और शेडिंग करने के टाइम ये आप देख रहे हो ना, ये नहीं होना चाहिए. सो वी शुड नॉट सी दिस काइंड ऑफ shading in our drawings. Okay, sometime it is not like perfect one, but for the starting you can use, no issue. So like see how I am doing. So it should be very clear. You cannot recognize with your eyes that there are some lines. Okay, so this is the basic principles of the shading the an object. Okay, आपको चारकोल पेंसिल भी मिलेगा, चारकोल पेंसिल्स, उससे भी आप कर सकते हो. चारकोल पेंसिल्स वो थोड़ा ज़्यादा ही ब्राइट रहता है, आप देख सकते हो. सो चारकोल पेंसिल हम लोग डार्क करने के लिए ज़्यादा करके यूज़ करते हैं. Use it for the darker purpose. Okay, so this is like the charcoal pencil. So this is the medium class Apsara charcoal pencil of the Apsara. It is medium. Okay, so in this you can get medium, hard and soft. There are 3 grades. Okay, medium, hard and soft. So these all are like you need to know while doing a artwork. बहुत ऐसे क्या होता है ना कि मतलब पता रहता है कि हाँ हमको ड्राइंग स्केच आता है, पर क्या होता है कि हम लोग जो नॉर्मल पेंसिल्स घर में यूज़ करते हैं अपने स्टडी पर्पज़ के लिए, हम लोग उसी पेंसिल से अपना ड्राइंग करते हैं. उससे क्या हो जाता है, जो एक्चुअल जो प्रॉपर जो आना चाहिए ड्राइंग में वो नहीं आ पाता है. सो व्हाट वी फाइंड एक्चुअली इन अ ड्राइंग, इट वुड नॉट कम, वो नहीं आ पाता है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पेंसिल्स को यूज़ करेंगे. कोई भी ड्राइंग करने से पहले हम लोग को दो चीज़ माइंड में रखना बहुत ज़रूरी होता है. हम लोग जैसे क्रिकेट भी खेलते हैं तो क्रिकेट में एक फिक्स्ड बाउंड्री रहता है कि हाँ ये बाउंड्री के पार गया तो 6, अगर उड़ के गया तो 6 हुआ, अगर ग्राउंड से गया तो 4 होगा. सेम वे हम लोग का एक ड्राइंग में भी एक बाउंड्री होता है. ओके, उस बाउंड्री के अंदर आप अगर कोई भी चीज़ बनाते हो तो बहुत मतलब सही उसको माना जाता है. परफेक्ट वेल प्रोपोर्शन में आएगा, सब कुछ एक प्रोपोर्शन के हिसाब से आएगा. सो
ड्राइंग को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। ड्राइंग को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी होता है और एक बाउंड्री में रह के कोई भी काम करने से क्या होता है कि ड्राइंग का लुक ही चेंज हो जाता है। मतलब एक बाउंड्री में कोई भी आप रह के काम करो, उसका बात ही कुछ अलग रहता है कि नहीं। देखिए, अगर ये मैं बाउंड्री लेके नहीं करता तो मैं कुछ मिस्टेक कर जाता, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया कि मैं वैसे नहीं करके मैं एक बाउंड्री में गया, बाउंड्री के अंदर मैंने ड्रॉ किया, ड्राफ्ट किया। तो देखिए, ड्राइंग्स में ऐसा शेडिंग नहीं होना चाहिए। ये जो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटर लाइन। सो आउटर लाइन यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा ब्राइट है, पर ये ब्राइट नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग का सन का फोकस इधर से है, सन पाथ का। सो ये क्या हुआ, उस प्रोस्पेक्टिव में ये रॉन्ग हो गया। ये कब अच्छा होता, जबकि जैसे इधर दिख रहा है, मैं डार्कर पोर्शन से लाइटर पोर्शंस में जा रहा हूँ, तब परफेक्टली इसको माना जाता। सो हैचिंग में आप लोग जिग जैग, क्रॉस, उसके बाद क्रॉस मैच, रैंडम, वो सब आप यूज कर सकते हो। बट नॉर्मली शेडिंग दिस इज़ कर्व, सो कर्व में ही जाएंगे तो बेटर रहेगा, वो अच्छा माना जाता है उसका। सो दिस इज़ हाउ मैंने एक पॉट बनाया। पर वही मैं अगर वो बॉक्स नहीं करता और रैंडमली मैं बनाता तो प्रोपोर्शंस बिगड़ जाता। सो दिस इज़ परफेक्ट और दिस, ऑब्वियसली दिस इज़ परफेक्ट। सो पहले बिगिनिंग में आप जब ड्राइंग कर रहे हो तो एक बॉक्स में काम करो, ज्योमेट्रिकल बॉक्स रेक्टेंगल, स्क्वायर, किस हिसाब का शेप है उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अपना बॉक्स को क्रिएट करेंगे और उस बॉक्स के अंदर हम लोग अपना डिज़ाइन करेंगे या जो भी फॉर्म्स रहेगा बना। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि शेडिंग कैसे किया जाता है, लाइटर टू डार्कर, डार्कर टू लाइटर। अब लाइटर टू डार्कर और डार्कर टू लाइटर में देखा जाता है कि लाइट किस तरफ से अपना आर्ट पे फोकस कर रही है, किस तरफ से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, टॉप, बॉटम, रेयर, कहाँ से आ रहा है, वो चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। उस हिसाब से शेडिंग को आगे में बढ़ाना चाहिए, ठीक है। सो ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट्स हैं। ये अगर छोटा चीज़ है, पर अगर आप इसको सुधार लेते हो तो आपका ड्राइंग परफेक्टली बनेगा, परफेक्टली। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकली एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। अभी हम लोग का लाइट इस पोर्शन से आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये पोर्शन डार्क है और ड्राइंग में, किसी भी ड्राइंग में शेडिंग का बहुत बड़ा प्ले रोल होता है। अगर आप उस चीज़ को शेडिंग दे देते हो तो उसका ब्यूटिफिकेशन जो भी रहता है वो बढ़ जाता है। सो प्रैक्टिकली देखिए, कैसे लाइट फोकस हो रहा है ऑब्जेक्ट पे और कैसे उसका शैडो क्रिएट हो रहा है, कैसे लाइट पड़ रहा है और कैसे ऑब्जेक्ट का फॉर्म चेंज हो रहा है। आप देख सकते हो प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली आप देख सकते हो कि कैसे लाइट, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को चेंज करूँगा उस हिसाब से क्या होता है कि लाइट का शेड जो आता है, शेड जो ऑब्जेक्ट का आता है वो चेंज हो जाता है, चेंज हो रहा है। सो अब इसी तरह हम लोग को अपना ड्राइंग में भी देखना पड़ता है कि मतलब किस तरफ से लाइट आ रहा है और कौन सा पोर्शन लाइट होना चाहिए, कौन सा पोर्शन डार्क होना चाहिए। अब वो तो रही अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग को कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम लोग को क्या चीज़ होना चाहिए, विजुअलाइजेशन होना चाहिए।
इस चीज़ को मैं विजुअलाइज कर पाऊँ अपने माइंड में। तो ये अगर मैं इसको टॉप से देखूँ तो कैसा दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है। ओके फाइन, ये टॉप से रेक्टेंगल दिख रहा है, मैंने टॉप को क्रिएट किया, एक रेक्टेंगल मैंने बना दिया, ठीक है। अब उस देखने के बाद इसका तो कुछ हाइट है रेक्टेंगुलर का, सो अब वो तो ऑब्जेक्ट क्यूबॉइड हो गया। तो आपको दिमाग में रखना है कि हाँ एक रेक्टेंगुलर फ्रॉम टॉप और हाइट उसका इतना है, प्रोपोर्शंस के हिसाब से आप उस चीज़ को अपने माइंड में, उस चीज़ को कंसेप्ट में लाना है आपको दिमाग में। वो लाने के बाद आपको क्या करना है, अपने ड्राइंग में उसको स्केच करना है। अब तो वो मैंने रेक्टेंगल कर दिया, अब हमको हाइट देना है, तो मैं एक हाइट दूंगा लाइट लाइन से। मैं एक लाइन को क्रिएट करता हूँ, मतलब मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स क्रिएट करूँगा पहले, ठीक है। अभी मैं जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने बना। अब इसमें क्या देखना ज़रूरी है कि मतलब ये जो लाइन जिस है ना उससे ये पैरेलल होना चाहिए, ये दोनों चीज़। अगर ये ऐसा है वर्टिकली तो ये इससे पैरेलल होना चाहिए, ये लाइन से ये चीज़ पैरेलल। जब वो सब पैरेलल होते जाएंगे तो ऑब्जेक्ट का जो स्केल्स प्रोपोर्शंस होते हैं वो एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। अब मैंने ऐसा कर लिया, करने के बाद अब क्या हुआ कि मेरा चार्ज अब ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मेरा यहाँ पे कर्व है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट को एनालाइज करूँगा मैं कि हाँ क्या कैसा करके है, ठीक है। वो हो गया। ऑब्जेक्ट को एनालाइज करने के बाद अब ये चीज़ से आपको ये 2 पिन्स आ रहे हैं, मैंने वो 2 पिन्स को बना दिया, ठीक है। सो अभी मैं आराम से धीरे धीरे मैं उस चीज़ को एनालाइज कर रहा हूँ कि हाँ कैसा है करके। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना शेडिंग है जो भी है वो करेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि मेरा लाइन जो मैंने बोला शेडिंग कैसे आ रहा है, उस चीज़ को एनालाइज करने के बाद इसका शैडो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट का शैडो यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो रहा है। इस चीज़ को आपको एनालाइज करना है। See how I am doing। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ब्राइटर टू लाइटर में जा रहा हूँ शेडिंग के लिए, और फिर यहाँ से ब्राइटर टू लाइटर में जाऊँगा। सो हाँ लाइक आप इतना तो एनालाइज कर पा रहे हो ना कि हाँ ये एक शेप क्यूबॉइड शेप है, क्यूबॉइड शेप में 2 सिलिंड्रिकल है। तो अगर मैं इसको अब टॉप से देखूँ तो मतलब ड्राइंग को समझना कोई भी ऑब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब टॉप से मैं देखूँगा तो हमको कैसा दिखाई देगा, एक ये वाला सिलिंड्रिकल, एक ये वाला और एक रेक्टेंगुलर। सो जब आप ऑब्जेक्ट को या कोई भी चीज़ को अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो आपको ड्राइंग करने में कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले कि चीज़ को अपने दिमाग में विजुअलाइज करना बहुत बड़ी बात होती है। आपको उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखिए ये टॉप है, उसका ये टॉप है, तो ये चीज़ को समझना, ड्राइंग को कैसे ब्रेकआउट कीजिएगा ये बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी शेप को कैसे अपने ड्राइंग में अच्छे से उसको ले पाएँ ये बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए कोई भी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जो आप यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ का यहाँ पे
सो ड्राइंग को पहले समझो, ऑब्जेक्ट को समझो, एनालाइज करो, उसके बाद अपना ड्राइंग जो भी है कौन सा पेंसिल यूज़ करेंगे, लाइट वेट, ब्राइटर, शेडिंग के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, जो मैं आपको सब फर्दर मैं बता ही चुका हूँ। डार्कर पेंसिल कौन सा है, ब्राइटर पेंसिल कौन सा है, उस हिसाब से आप पेंसिल को सिलेक्ट करो और कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ। नॉर्मल स्मॉल शेप्स का कोई भी चीज़ उठाओ, ऑब्जेक्ट को उठाओ, उस चीज़ को ध्यान से देखो, उसका अंडरस्टैंडिंग करो, उसका लाइट का, उसका प्रोपोर्शंस का, मतलब उसका हाइट कितना है, उसका लेंथ कितना है, उसका विड्थ कितना है, ये सब चीज़ को पहले खुद से एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। वो करने के बाद आर्ट इज़ very very easy. You can do any kinds of art if you have the good visualizations. अगर आपके पास सोचने की और समझने की क्षमता है तो आपके लिए आर्ट कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। There is nothing to worry, okay? So आज का मैं टॉपिक यही रहा। फर्दर मैं वीडियोस में अपडेट करते रहूँगा आप लोगों को। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।